सो अभी तक हमने क्लिपर्स पढ़ा था पहले. सो इन क्लिपर्स व्हाट वी फाउंड दैट कि वी नीड टू remove a certain portion, but in clamper it's different. Here in the clamper we either bring my input voltage to certain positive level or to certain negative level. For example, if suppose, sorry, yes, suppose this is my input, a sine wave, right? Now this input is, suppose, let's say 5 volt minus 5. If I change this input to a circuit which gives me this output, suppose let's say this is 5, 10, 0. So you can see here that in this particular waveform, what is the change? The shape of the signal remains same, but it gets towards positive side a little bit. कितनी पॉजिटिव गई, कितना क्लैंप किया? तो हमने क्लैंप का मतलब क्या है, किसी को उठा के ऊपर लेके जाना या नीचे लेके जाना, है ना? सो क्लैंप करने का यहाँ मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा पहले इनिशियली इनपुट का रेफरेंस 0 था, and for this output we are now taking this reference instead of 0 as 5 volts now, but the signal remains same. Now if I ask you what is the peak to peak voltage or other input voltage, so can you tell me what is the peak to peak input voltage here? कैसे निकालते हैं peak to peak? 5 minus 5 minus 5. So it is coming out to be how much? 10 volts. So 10 this volts. is 10 volts is the peak to peak input voltage. और इसको क्या बोलते हैं? Input voltage swing. Swing का मतलब भी क्या है? पीक से पीक, ऊपर पॉजिटिव से नीचे तक कितना आया, राइट? सो इनपुट वोल्टेज स्विंग कितना आया हमारे पास? 10 वोल्ट्स आया. अब अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज स्विंग? 10 आएगा. 10 आएगा. ऑल आई गिव दिस 10 minus 0, that is 10 volts. सो अब ये मैंने आपको क्यों बता रहा हूं स्टार्टिंग में ही, that in clamper circuit wherever we move the signal either towards upside or downside, my input voltage swing will always equal to the output voltage swing. So if for drawing the waveforms in any of the question you found that ki your voltage swing, output voltage swing is coming different and that's that of input, it means you might have done something wrong. So it is a requirement that it's always my output voltage swing must be equal to the input voltage swing. बच्चे म्यूट करो, कौन है बीच में ये? So now here we are having 10 volt as the output voltage swing and 10 volt as the input voltage swing. So clamper ने क्या किया? सिग्नल को चेंज नहीं किया, सिर्फ उसके डीसी लेवल को अप या डाउन शिफ्ट किया. Similarly, I can expect the output like this. Let's say 0, minus 5, minus 10. Now what is happening here? I am trying to bring this particular input to a level which is minus 5 volts. है ना? सिग्नल सेम है, फर्क क्या हुआ? 0 की जगह अब minus 5 से स्टार्ट हो रहा है. Exactly it is following the same thing. So इसकी भी स्विंग कितनी आएगी? 10. 10, that is 0 minus of minus 10. अब ये जो पहला हमने वेवफॉर्म बनाई थी, दिस आउटपुट जब पॉजिटिव में ले गए थे, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लैंपर. क्या बोलते हैं? पॉजिटिव क्लैंपर. इफ आई एम क्लैंपिंग द डीसी लेवल, डीसी लेवल का मतलब क्या है? जैसे आपका ये साइन वेव आ रही है इनपुट की, इसका डीसी लेवल इज व्हाट? 0, रेफरेंस लेवल, कि ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है ना? तो ये डीसी लेवल इसका 0 है. सो इफ आई एम क्लैंपिंग द डीसी लेवल टुवर्ड्स एनी पॉजिटिव साइड, इट इज सेड टू बी एज अ पॉजिटिव क्लैंपर. And if I am clamping the DC level of my input towards negative side, it is a negative. तो ये नेगेटिव क्लैंपर की वेवफॉर्म. तो अभी आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होगी इस स्लाइड से, क्या कि जो क्लैंपर है वो मेरी इनपुट सिग्नल को ऊपर या नीचे शिफ्ट करता है, वेवफॉर्म को चेंज नहीं करता शेप को. और सेकंड थिंग, जो मेरा
input voltage swing है, that is peak to peak input voltage, it is always equal to output voltage swing or the output peak to peak voltage. Or if I am shifting clamping towards positive side, it is said to be as positive clamper. If I am clamping towards the negative side, then it is said to be as negative clamper. Right. Now let's see this slide जिसमें लिखा गया हुआ है. Clamper is an electronic circuit which is used to shift the waveform to a different DC level. For example, in this case, I am shifting to +5 level. Here I am shifting to -5 volt. अब इसमें एक चीज और आ जाती है क्या कि what is the amount of clamping? कि आपका जो सिग्नल था, आपने क्लैंपर सर्किट से पास किया उसको, ठीक है, उसने आपको आइदर अप काउंट पॉजिटिव क्लैंप किया या नेगेटिव क्लैंप किया, तो कितना अमाउंट ऑफ क्लैंप किया, तो वो कैसे निकालते हैं कि पहले कहां पर था, अब कहां जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं तो दैट वोल्टेज -0, नीचे आ रहा हूं तो 0 माइनस दैट वोल्टेज. सो इन दिस टू केसेस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग? जीरो से कितना ऊपर गया सिग्नल मेरा आउटपुट में 5 वोल्ट. 5. यहाँ 0 से नीचे कितना -5. इट मींस अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग इज 5 वोल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वेवफॉर्म. कि मैंने अपने इनपुट में कितनी क्लैंपिंग करी, अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग कितनी हुई, इस केस में 5 वोल्ट हुई, और इन जनरल द पीक वोल्टेज. ठीक है. अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, मैंने कहा कि इनपुट को क्लैंप करना है आइदर टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड और टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, but who is going to do this job for me? So here we are using the capacitor. So capacitor is used as a clamping element. आप देखोगे, अभी आपको सर्किट दिखाएंगे क्लैंपर का, जिसमें आप देखोगे एक कैपेसिटर लगा हुआ जो काम क्या कर रहा होगा, इट्स जॉब इज टू जस्ट क्लैंप माय इनपुट टुवर्ड्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, तो ये स्लाइड क्लियर है. चले आगे. इसमें देखो कोई डाउट है किसी को, प्लीज आस्क. इट्स क्वाइट क्लियर है ना कि क्लैंपर दो तरह के होते हैं और कैपेसिटर यूज कर रहे हैं फॉर क्लैंपिंग. अब कैसे काम करता है वो समझना. हमें ये क्लियर होगा कि इनपुट ये आउटपुट ये है, बट वो कौन करेगा, उसकी एनालिसिस कैसे होगी, उसको हम स्टडी करते हैं. सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर क्लैंपर सर्किट. ये क्लैंपर सर्किट में होता क्या है ना. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज अ सर्किट फॉर योर क्लैंपर. जो आपका सर्किट बना हुआ है ना, इसमें देखो क्या है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है और एक रेजिस्टर लगा हुआ है. अब बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस सर्किट, मैं आपको पहले दो बातें समझाता हूं. पहली चीज तो ये कि यू ऑल नो कैपेसिटर का रोल क्या होता है. क्या करता है कैपेसिटर? इट स्टोर समथिंग, है ना. अब जब ये चार्ज होता है पहले, फिर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है. ये तो आप सबको पता है कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है ना. Yes. हम यहाँ पर कहते हैं जब चार्ज हो रहा है तो कितने टाइम में वो चार्ज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नेम एज चार्जिंग टाइम कांस्टेंट. और डिस्चार्ज कितने टाइम में हो रहा है उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट. क्या मतलब है इसका कि जब मैंने ये कैपेसिटर लिया, इसके बाद यहाँ वोल्टेज लगा दी, सपोज करो, है ना, लेट्स से मैंने अभी वोल्ट लगा दिया, तो अब ये जो कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज हो रहा है वो देख रहा है. दूसरा, अगर डिस्चार्ज हो रहा है फॉर सम वोल्टेज, तो वो डिस्चार्जिंग की टाइम कांस्टेंट. तो इट मींस टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाउ. टाउ का लिखते हैं R into C, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटर वैल्यू, है ना. तो हमारे क्लैंपर्स के अंदर एक बेसिक assumption है क्या कि द चार्जिंग टाइम कांस्टेंट is kept very low. ये मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना. अगर ये समझ में आ गया तो 50% आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा. That is, a charging time constant is kept very low and discharging time constant is kept very high. अब अगर मैंने किसी को बोला कि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत कम है, इसका मतलब क्या है? इट इंडिकेट्स दैट कैपेसिटर इज टेकिंग वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट फुली चार्ज्ड. ये मतलब है इसका. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एंड इफ आई एम सेइंग डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज वेरी हाई, इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर की वोल्टेज 0 पे नहीं आएगी जल्दी, है ना.
It will take a huge amount of time. Yes, Let's sir. try to understand this with example. Suppose I am having a sine wave, or let's say square wave. Let's say a square wave. इस स्केयर वेव का सपोज करो टाइम पीरियड लेते हैं 1 मिलीसेकंड, 0.5 मिलीसेकंड, है ना? तो अब जो कैपेसिटर है इट विल आइदर चार्ज इन पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, है ना? किसी साइकिल में चार्ज होगा, दूसरे में डिस्चार्ज होगा. सपोज करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि आपका पॉजिटिव है वो चार्ज हो रहा है, सपोज, और पॉजिटिव इट इज गेटिंग चार्ज एंड फॉर नेगेटिव इट इज गेटिंग डिस्चार्ज. सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? ये कोई मैंडेटरी नहीं कि पॉजिटिव में चार्ज होगा, नेगेटिव में भी चार्ज होता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग द केस कि इफ सपोज माय कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव वे वो डिस्चार्ज हो रहा है. अब मैंने कहा कि जो मेरा इनपुट है उसका टाइम पीरियड क्या रखा है मैंने, 1 मिलीसेकंड, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 मिलीसेकंड उसको चार्जिंग मिलेंगे और मिलेगा, और 0.5 मिलीसेकंड उसको डिस्चार्जिंग मिलेगा, ठीक है? अब मैंने जो टाउ यूज किया जिसको मैंने कहा आरसी, सपोज आई केप्ट इट इंटेंशनली टू 1 सेकंड, ठीक है? मैंने क्या किया, जो मैंने आरसी नेटवर्क देखा ना आपको, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, क्योंकि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो इट विल डिस्चार्ज फ्रॉम सम रेजिस्टर, है ना? तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, दैट रेजिस्टर इनटू द कैपेसिटर वैल्यू. तो सपोज करो मैंने आर और सी कॉम्बिनेशन इस तरह यूज किया कि आरसी मेरे पास 1 सेकंड आ रहा था. तो अब इसका मतलब क्या है कि जब मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है इट विल टेक 0.5 मिलीसेकंड्स इसको मिलेंगे डिस्चार्ज होने के लिए, लेकिन इसका डिस्चार्जिंग टाइम तो 1 सेकंड का है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, ये 1 सेकंड, इसको कन्वर्ट करो मिलीसेकंड में कितना होगा, 1000 मिलीसेकंड. अब ये 1000 मिलीसेकंड इसको चाहिए फॉर डिस्चार्जिंग, लेकिन मैं दे कितना रहा हूं टाइम इसको, 0.5 मिलीसेकंड. तो क्या ये डिस्चार्ज होगा? नो सर. नहीं होगा. अगर ये डिस्चार्ज नहीं होगा तो क्या करेगा ये, इट विल होल्ड दैट वोल्टेज. यस सर. कि अगर मैंने Yes. कैपेसिटर को मान लो पहले 5 वोल्ट में चार्ज कर दिया, तो जब डिस्चार्जिंग का साइकिल आया उस टाइम पे मैंने वोल्टेज जो टाइम है वो इतना रखा हुआ है कि वो डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा. इट मींस फॉर नेगेटिव इट विल होल्ड दिस वैल्यू 5 वोल्ट्स. इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? सर यस सर. हाँ, बोलो बोलो बोलो. सर हम ये टाइम कैसे असाइन करते हैं सर? टाइम कैसे है, 5 कौन सा टाइम, मिलीसेकंड में? ये 1 मिलीसेकंड वाला कह रहे हो कि 1 सेकंड वाला कह रहे हो? हाँ सर यही. जो 1 मिलीसेकंड है ये तो मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये तो मेरी इनपुट आ रही है. अच्छा. इनपुट कुछ और भी हो सर सकती है. ये चार्ज और डिस्चार्ज का हाँ, टाइम हम जो ये वाला कैसे टाइम है ये समझ सकते आरसी हैं? से होता है. अब देखो इसमें क्या होता है कि जब आर, मैंने सपोज करो आर रख दी वैल्यू मैंने लेट्स से 1 मेगा ओम, तो मेरे हाथ में जो मर्जी रेजिस्टेंस यूज करूंगा ना. कैपेसिटर लेट्स से मैंने रख दिया अपना लेट्स से 1 माइक्रोफैरड, तो आरसी कितना हो गया बता, 1 मेगा ओम, 1 सेकंड हो गया. यस सर 1 सेकंड. So it means by choosing the appropriate value of R and C, I can set the discharging time constant to any value that I want, है ना? तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत हाई रखना है, तो मैं R की वैल्यू बहुत हाई रखूंगा पहले ही, राइट? अब इनपुट का मुझे पता है कि जो साइकिल आएगा, अब इनपुट साइकिल होता है इसका पीरियड, वो हमें चेक करना है कि जो हाफ ऑफ द पीरियड T/2 वो हमारे पास क्या होना, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द RC कांस्टेंट. क्लियर दिस पॉइंट? कि जो इनपुट का मेरा साइकिल है, जो क्योंकि हाफ साइकिल में तो आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जब चार्ज होगा तो पाथ कौन सा होगा उसका, ये वाला. अब जब डिस्चार्ज होगा तो ये वाला पाथ होगा. अब हम करते हैं इसकी एनालिसिस सर्किट की कि जब चार्ज होगा तो डिफरेंट लूप से आएगा करंट, डिस्चार्ज होगा डिफरेंट लूप में जाएगा. जब चार्ज हो रहा तो मैंने क्या कहा, टाइम कांस्टेंट बहुत छोटा है. क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर इस पर्टिकुलर सर्किट में हमारे पास इस लूप से चार्ज हो रहा है, जब कैपेसिटर फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस अगर आपको याद हो हमने लिखा था इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 ओम्स, है ना? लिखा था जब हमने डायोड को रिप्लेस किया था विद रेजिस्टेंस आर एवरेज एंड अ बैटरी, तो हमने कहा था ये रेजिस्टेंस कितनी होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओम्स, 5 ओम 6 ओम 10 ओम्स इसकी होती है ना?
तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इस 5 ओम या 10 ओम्स को मल्टीप्लाई करूंगा विद दिस कैपेसिटर जो 1 माइक्रोफैराड का, तो कितना आएगा टाइम कांस्टेंट बताओ मुझे? 10 ओम into 1 माइक्रोफैराड, so it is coming out to how much? 10⁻⁻5। अब इतना टाइम लग रहा है उसको चार्ज होने में, तो ये बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू 1 सेकंड, यस और नो? क्लियर वो पॉइंट पर, ये वही वाला बच्चे को डाउट किसी का? तो हमने माइंड में क्या रखना है कि इन क्लैंपर वी आर कीपिंग द आर एंड सी कांस्टेंट, जो हमारा डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है उसको बहुत हाई रखा है। क्यों हाई रखा है? बिकॉज वी डोंट वांट द कैपेसिटर टू गेट डिस्चार्ज और वी आर नॉट अलाउइंग इट टू डिस्चार्ज, वो उसको होल्ड रखा है, तभी वो क्लाइम कर पाएगा उस वोल्टेज को। यस सर। ठीक है, अब आए थे इस सर्किट की वर्किंग के ऊपर, इतना क्लियर है? इसको इरेज कर दूं? जी सर। अब देखो इसकी वर्किंग, अब ये सर्किट कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमने देखना क्या है कि जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर को हमने पहले चार्ज करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए कि आपने ये आइडेंटिफाई करना कि फॉर पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस हाफ में, इसमें या इसमें मेरा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो देखो यहाँ लिखा भी है फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द हाफ साइकिल दैट मेक्स द डायोड फॉरवर्ड बायस, क्योंकि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तभी तो यहाँ से करंट जाएगा, तभी तो कैपेसिटर चार्ज होगा। तो आपने पहला काम क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना कि क्या पॉजिटिव हाफ में कनेक्ट करेगा या नेगेटिव हाफ में कनेक्ट करेगा। वो जब डायोड कनेक्ट करेगा तभी मेरा चार्जिंग होगी, राइट। नाउ लेट्स से कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव हाफ दिया 0 से लेकर t/2 का, फ्रॉम 0 to t/2 व्हाट इज माय इनपुट? प्लस v, है ना? तो आई हैव अप्लाइड हियर v with positive this side, negative this side, right? Now if I apply plus v, what will happen to this diode? It will be forward biased, क्योंकि यहाँ p पे पॉजिटिव मिल रहा है ना, और n पे नेगेटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। और ये डायोड मैंने क्या लिया? आइडियल डायोड सपोज। तो अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द वोल्टेज एट व्हिच माय कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड? What will be the voltage? Let me call this voltage VC. When I apply the plus V volts, for what value my capacitor will be charged? सर V। V. All agree with this? यस सर। Yes, sir. स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि आप यहाँ प्लस V लगा रहे हो, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इन दोनों के पॉइंट की जो सिर्फ कैपेसिटर लगा, तो इट मीन सारी वोल्टेज कैपेसिटर के पास आ गई। तो आपका जो कैपेसिटर है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल इट गेट्स चार्ज टू प्लस V volts. Now, if this capacitor is charged to plus V volts, can you tell me what will be the output at that time? So peak to peak. I'm saying for the positive half cycle, I'm saying my capacitor is charged to plus V volts, right? Now I am asking what will be the output voltage here? V. V. All agree to this? Yes, sir. This is wrong. सर 2V होगा। 2V होगा, ये भी गलत है। सर 0। Sir, 0 0. होगा, that is the correct one. अरे भाई देखो ना, आपने V वोल्ट लगाया यार, V वोल्ट तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब बचा क्या उसके पास? कुछ भी नहीं। और ये ऐसे समझ लो इसको कि जब मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस था तो इट एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। Yes, sir. तो हमने 0. क्लैंपर में किया था, शंट क्लैंपर में सारा करंट यहीं से फ्लो हो जाएगा, यहाँ तो कुछ जाएगा नहीं करंट, और Yes, यहाँ हाँ, करंट zero हो आउटपुट भी जाएगा। आएगा, 0 आएगा। So Zero it हो means whenever my capacitor is charging, I am getting the charging voltage equal to the input voltage V, but my output voltage goes to 0. Clear is the point? यस सर। Now let's talk about when my input is negative. अब जब नेगेटिव होगी तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, नीचे प्लस आ गया। अब देखो आपका क्या होगा, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ दिस डायोड? ये डायोड क्या होगा बताओ मुझे अब?
रिवर्स बायस रिवर्स बायस तो ओपन होगा ये तो यहाँ से, सर ओपन तो अब करंट कहाँ जाएगा सारा? सर सर ये रेजिस्टर से सीधा चल जाएगा सर रेजिस्टर यस, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज? सर वी अप्लाई केवीएल, कितना आएगा? वी V. ऑल एग्री विद दिस? इससे कम नहीं हो रहा थोड़ा सा? कितना बोलो? बोलो कितना कम करें? यस, कम ऑन बोलो, शाबाश। कितना कम करें या कुछ और वैल्यू, या V ठीक है? इज V ओके? यस सर, वी ठीक है। V ठीक है Yes, सबको? ठीक है। ओके, बट दिस V इज रॉन्ग। ऐसे कैसे बताओ, आप लोग बताओ कैसे क्या? अरे भाई V आपने माइनस यहाँ पर आया माइनस V लगाया, कितना आएगा? अच्छा ठीक है, माइनस भी आए। केवीएल लूप लगाओ ना भाई आपके। Keep in mind that during the positive half cycle, your capacitor is charged to a value of V volts. And during negative half, it is not, we are not allowing the capacitor to discharge. So what will be the output voltage? जीरो। हाँ, नहीं कुछ नहीं, V कैसे हो गई? नहीं बी नहीं बोली मैंने। नहीं आया समझ में? Okay, let me show you the loop. मैं चाह रहा था कि आप खुद करो, पर आपको नहीं दिख रहा। देखो, जब मैंने माइनस V लगाया है तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। कैपेसिटर मेरा उस टाइम पे चार्ज है V वोल्ट्स पे। अब केवीएल लूप लगाओ, यहाँ पर देखो क्या आता है। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है? माइनस V। पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस V। पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस V नॉट इक्वल टू 0। तो V नॉट कितना आ गया? -2V। फिर अब आपके वही कैसे आ रहा था? क्लियर हुआ ये पॉइंट को? नहीं हुआ? देखो हमने क्या किया, पहले हाफ चूज देख लो, जो हमारा पॉजिटिव हाफ था उसमें हमने कहा कि डायोड मेरा यहाँ पर शॉर्ट हो गया। जब शॉर्ट होगा तो करंट सारा इसमें से जाएगा, तो आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा टू अ वैल्यू ऑफ V। हमने निकाला V इक्वल टू V, एंड एट दैट टाइम माय V नॉट इज 0 वोल्ट्स। अब कैपेसिटर मेरा चार्ज होगा टू V वैल्यू विद पॉजिटिव दिस साइड, नेगेटिव दिस साइड, and now during the negative half we are not allowing the capacitor to discharge because we have kept RC very high. So it means यहाँ पर discharge तो होगा नहीं, there is no change in sign here, right? So it will hold this value V volts. So now when I apply negative V volts here, apply the KVL from positive to negative minus V, positive to negative minus V, positive to negative minus V not is equal to 0. So V naught I am getting what? Minus 2V. And if somebody asks you, okay, मुझे ये बताओ कि during negative half cycle what is the value of VC? Sir, VC during Negative half cycle. negative half cycle minus V. Minus V. Sir, V. It will remain V ना, डिस्चार्ज तो हो ही नहीं रहा यार वो। Okay. ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज कैसे प्लॉट किया। देखो ध्यान से, फ्रॉम फॉर द पॉजिटिव हाफ दैट इज फ्रॉम 0 to T/2, व्हाट वाज माय आउटपुट? 0 volts. So I have plotted 0 volts. From T/2 to capital T, I am getting output how much? -2 volts. नीचे आ जाओ -2 volts पे, फिर वापस ऊपर जाओ T के पर, क्योंकि T में फिर 0 हो जाएगा। So it will go like this. Now, can you tell me what is the output voltage swing? Output voltage swing. बताओ। -2. Why -2? बचे पॉजिटिव पीक माइनस ऑफ नेगेटिव पीक, ऐसे क्या करो? Sorry, 2. It will be 2V. 2V. Yes, sir. और इनपुट वोल्टेज स्विंग कितना था देखो पीछे, V माइनस ऑफ माइनस V कितना था? Minus 2V. तो इनपुट वोल्टेज स्विंग
इट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज स्विंग। अगर आपका कभी भी एग्जाम में बनाते हुए आपको लगे कि यार मेरा आउटपुट वोल्टेज स्विंग तो कुछ और आ रहा है, इनपुट का 2 भी था, तो आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। सो जस्ट गो बैक एंड अगेन चेक इट। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग इन दिस सर्किट, कि आपकी V. इनपुट That अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग इज V 2 volts। minus V. सी Sir, अमाउंट minus ऑफ 2V. जब नहीं सुनो, जब हम कहते हैं ना अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग, इट इज नॉट कि हम माइनस वी लिख प्लस वी। अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग कितना क्लैंप हुआ है, वी नीचे है ना, V so it's a volts. magnitude part. Amount of clamping is never negative or positive. Amount of clamping is always a mod value, this value is V volts. अब ये जो आउटपुट है आपकी, ये कौन सी क्लैंपर है, नेगेटिव क्लैंपर है या पॉजिटिव क्लैंपर है? negative. नेगेटिव क्लैंपर, क्योंकि नीचे लेके आया है माइनस वी पे। इज इट क्लियर और शुड आई अगेन एक्सप्लेन? अगर कोई नई चीज क्लियर तो मुझे बताओ, मैं दोबारा सुनाऊंगा इसको। Yes. शुड आई एक्सप्लेन अगेन? एनीबॉडी जिसको समझ नहीं आया प्लीज बताओ। सर एक और बार समझा दीजिए। हाँ देखो, हमारे पास सर्किट बच्चे ये वाला था। इस सर्किट में हमने क्या कहा कि हमने कहा कि हम पहले आइडेंटिफाई करना है आपने कि कब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। तो आप एक चीज दिमाग में रखो कि फॉर द केस ऑफ क्लैंपर्स, जब मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा देन कैपेसिटर विल चार्ज, ठीक है। और जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो कैपेसिटर विल होल्ड द वोल्टेज। इतनी सी बात रखिए। तो पहले वो वाला साइकिल निकालो जब मेरा कैपेसिटर चार्ज हो, इट मींस जब मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस। तो हमने देखा डायोड का पी ऊपर लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या पॉजिटिव हाफ दोनों है तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्लस वी दिया, तो प्लस वी दी, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। जब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, इसको हमने क्या किया, वी हैव रिप्लेस्ड विद अ शॉर्ट सर्किट बिकॉज़ इट इज अ आइडियल डायोड, ठीक है। तो आइडियल को शॉर्ट कर दिया हमने। अब यहां से हमने लूप लगाया, तो यहाँ पर V माइनस ऑफ VC इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, वी गॉट VC इज इक्वल टू V volts, दैट इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज नथिंग बट माय इनपुट वोल्टेज V। And what is the output voltage? Because there is no amount of current flowing through this, so output voltage is nothing but 0 volts. So for the positive half cycle for this particular circuit, my diode is forward biased, my capacitor is getting charged to plus V volts, and my output is 0 volts. Now, the moment I am supplying my negative half, during negative half my input is minus V. For that time, my diode will be reverse biased. It means it acts as an open circuit. Now my capacitor will hold the value of the previous charge value because RC is very high, so we won't allow the capacitor to discharge. So it will hold that value V. Now if I apply the KVL loop, I will get V naught is equal to minus 2V. It means during the negative half I am getting the peak voltage of minus 2 volts. So now I have plotted here. So this brings my input waveform down towards V volts. So amount of clamping is V, and that too in the negative direction. So this is a negative clamper circuit. Any doubt still now? Please ask. No, sir. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Now if this thing is clear, तो आपने मुझे अभी एक चीज बतानी है कि अगर ये डायोड प्रैक्टिकल होता, सोच के बोलना, ठीक है, ये प्रैक्टिकल डायोड होता तो मेरी आउटपुट में क्या चेंज आना था? Will there be any change? Yes or no? तो ये बताओ। क्या कुछ चेंज आएगा अगर प्रैक्टिकल डायोड होगा जी? तो सर पर फिर तब रिवर्स बायस में तो सर उसको वो नहीं ले सकते ना, सर अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग कम हो जाती। अमाउंट ऑफ हमें अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग की टेंशन लेनी है अभी हमें ये सोचना है पहले कि जब हम प्रैक्टिकल डायोड की बात कर रहे हैं तो क्या प्रैक्टिकल डायोड के केस में मेरी वेवफॉर्म में कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। ओके, अगर आएगा तो कब आएगा? पॉजिटिव हाफ में आएगा, नेगेटिव हाफ में आएगा, या दोनों में आएगा? नेगेटिव हाफ। नेगेटिव हाफ में। पॉजिटिव में नहीं आएगा? नो सर।
ऑल एग्री विद दिस कि पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव विल रिमेन सेम एट 0। बोलो Yes, sir. गलत है। सर ड्रॉप नहीं आएगा। फिर बोलते क्यों नहीं यार, बोला पॉजिटिव था में ना आएगा बिकॉज जब आएगा, क्या चेंज सिग्मा आएगा देखो। जब पॉजिटिव हाफ की बात करूंगा तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ दिस डायोड? अगर पैटिक डायोड तो क्या पॉजिटिव में करूंगा? सर फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी सर इसमें। तो किसको किससे रिप्लेस करूंगा? अभी शॉर्ट सर्किट बैटरी बैटरी से बैटरी से। पी कहाँ रखूं, ऊपर और नीचे? डायोड की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा वो। अभी जो आपने सर्किट किया है इस पे बताओ ना। ये पी पीछे देखो, ये ऊपर है। पी ऊपर है ना, हाँ सर पी ऊपर होगा। ये पी ऊपर ही है यहाँ पर। ये वैल्यू होगी 0.7, लेट्स से सिलिकॉन डायोड है। ये कैपेसिटर हो गया, ये मेरी इनपुट वोल्टेज है V वोल्ट्स। लेट्स से V मेरी 5 है, सपोज कर देते हैं मेरे 5 वोल्ट है ये वोल्टेज, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर? विल इट स्टिल बी 5 वोल्ट्स? 4.3. 4.3 4.3 बिल्कुल सही बोला, 4.3 वोल्ट इज द कैपेसिटर वोल्टेज। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज नाउ? 0.7 0.7, वेरी गुड। क्योंकि हमें अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज तो 0.7 ही रहेगी, तो इट मींस आई एम गेटिंग 0.7 volts as the output whenever my diode is forward biased. Is this point clear? Yes, sir. Now can you give me the status for the negative half? Means when I apply -5 volts, what is the output voltage? So 9.3 volt. 9.3 volts. All agree with this? बोलो, कोई एग्री नहीं कर रहा? देखो आपको जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप उसका सिंपल लूप लगाओ ना यार। अब जब हमें नेगेटिव हाफ में देखा, नेगेटिव हाफ में क्या, ये तो आपका डायोड काम ही नहीं करता। अगर काम नहीं कर रहा तो ये वाला लूप लगेगा। तो लूप लगाओ, यहाँ पर क्या लूप लगाया देखो हमने, पॉजिटिव से नेगेटिव गया कितना है, या मान लो मेरी 5 वोल्ट है यहाँ पर, तो क्या आएगा -5, फिर पॉजिटिव नेगेटिव माइनस VC, VC कितना है 4.3 -4.3, ठीक है। देन पॉजिटिव नेगेटिव माइनस V0 इक्वल टू 0, तो V0 कितना आ गया -9.3। तो आपने 9.3 क्यों बोला यहाँ पर? ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस चेंज करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। सो V0 इज -9.3। नाउ इफ आई ट्राई टू प्लॉट, तो कैसे बनेगी देखो। For the positive half cycle, I am getting output as 0.7 volts. So suppose this is my 0.7. ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ में मेरी 0.7 आ गई। For negative half, I am getting 9.3 volts with negative 9.3. I will go down like this. Now, can you tell me what is the output voltage swing? सर Minus -0.3 Minus -0 सर -0.7 -9.3 minus 0.7 minus 9.3 निकालो कितना आता है? -10. हमारी तो माइनस कैसे आया समझाओ मुझे। 0.7 माइनस 9.3 आएगा सर। कितना आएगा? 0.7 माइनस 9.3। यस, जब भी आपने स्विंग निकालना है ना बच्चे, पॉजिटिव पीक पे बैठ जाओ, दैट वोल्टेज माइनस ऑफ नेगेटिव वोल्टेज, वो होता है वोल्टेज स्विंग। तो आपकी पॉजिटिव वोल्टेज कहां पर है? 0.7 पे। इट इज नॉट माइनस, इट इज प्लस 0.7 ना। सो प्लस 0.7 माइनस ऑफ माइनस की -9.3 तो दैट इज कमिंग 10 वोल्ट्स। तो इनपुट 10 वोल्ट्स, इट मींस माय वेवफॉर्म इज परफेक्टली करेक्ट, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ अभी?
यस सर। हमने दो केसेस पढ़े हैं, आइडियल वाला भी पढ़ लिया, प्रैक्टिकल भी पढ़ लिया। चलें आगे। Yes. If anybody having doubts, please पूछो। चलो, लेट्स टेक दिस सर्किट। इस सर्किट में हमने क्या किया, फर्क देखो ध्यान से, हमने डायोड की ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, प्लस हमने एक बैटरी लगा दी। So let me give you on that paper, wait, आप इसको खुद अटेम्प्ट करना अभी, तो ज्यादा क्लैरिटी होगी बजाय कि देखने के सीधा। सो लेट्स से ये मेरा कैपेसिटर है और ये मेरा डायोड है, और हमने बैटरी कैसे लगा रखी थी इस केस में, पॉजिटिव ऑफ साइड, ठीक है, ये पॉजिटिव बैटरी। ये सबको विजिबल स्क्रीन है मेरी? Yes. Suppose this is my circuit and I am feeding, कौन सी वेव दे रहे हैं, स्केयर दे रहे हैं, हाँ स्केयर दे देते हैं। Suppose this is 5 volts minus 5 volts, ठीक है, and let's say this is 1 volt. Assume diode to be silicon. Now can you give me the output voltage? तो just recall the steps. फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा? कब होगा, तो इसमें कब फॉरवर्ड बायस होगा, पॉजिटिव हाफ में या नेगेटिव हाफ में? नेगेटिव हाफ में। नेगेटिव हाफ में। ऑल एग्री विद दिस? यस सर। Yes. बिल्कुल ठीक बोला। सो फर्स्ट थोड़ा हमने देख लिया कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, ये बिल्कुल ठीक है पॉइंट। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उसको रिप्लेस करो किससे, अगर सिलिकॉन डायोड तो बैटरी से रिप्लेस करो, फिर केवीएल लूप लगाओ, फिर देखो यहाँ पर वीसी कितनी आती है। तो नेगेटिव हाफ का मतलब क्या, यहाँ पर आप नेगेटिव लगाओगे, यहाँ पर पॉजिटिव लगाओगे, है ना, 5 वोल्ट। और यहाँ पर लेट्स से आपकी हेल्प कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ मेरा बैटरी। सर जब वी इनपुट 1 वोल्ट से कम होगी तब फॉरवर्ड बायस नहीं होगा? यहाँ पर इनपुट कितनी है हमारे पास, 5 वोल्ट। फिर आप देखो ना, ये डायोड है मेरे पास, इस डायोड के पीवी मैंने क्या लगा रखा है, 1 वोल्ट। यस सर। अब यहाँ पर 1 वोल्ट से कम होनी चाहिए, यस सर। है ना। अब वैल्यू हमारे पास क्या है, या 5 है या -5 है। अगर 5 लगाऊंगा तो फॉरवर्ड बायस होगा नहीं, अगर -5 लगाऊंगा तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसे वो वेव ध्यान नहीं दिया मैंने दोस्तों। ठीक है, तो इट मींस फॉर द इनपुट -5 I am getting my diode forward biased. Now I have replaced it with a battery of let's say 0.7 volts. अब क्या वो सारा का नहीं जाएगा, है ना, आगे तो कुछ जाएगा नहीं। तो अब मुझे बताओ, what will be the value for which my capacitor will be charged? -4.7। -4.7। यस सर। सबका ये है, कुछ और है बताओ। बोलो शाबाश, कुछ और आ रहा तो बोलो। सर +4.7 आ रहा है। +4.7 आ रहा है, ओके। और कोई? सर ये अपना -5.3 -5.3 आ रहा है। -5.3 आ रहा है। ओके, और? ओके, यही तीन आंसर है। चेक कर लेते देखो क्या होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव के तो क्या लिखते हैं हम उसको,
-5। Yes, sir. यहाँ पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ क्या होगा? प्लस VC, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस 0.7, पॉजिटिव नेगेटिव, -1 इज इक्वल टू 0। तो VC कितना आ गया? -6 प्लस 0.7, ऐसे होगा ना? VC कितना Yes. आएगा? -6। 5. सर 5.3. 0.3. हाँ सर हाँ, बोलो बोलो, शाबाश। सर ये जो बोलो। कैपेसिटर का है सर, ये हम इसके जो साइन है सर वो चेंज करते रहते हैं बार बार। बताओ, ये देखो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, लेट मी शो यू। ये दिख रही है सबको कि जब मैं यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई क्या किया पहले कि किस टाइम पे मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, हमने ये चीज देख रहे पहले केस। तो अगर मैं नेगेटिव आउट लगा रहा हूँ पहले, तो मेरे कैपेसिटर नेगेटिव पे चार्ज होगा ना पहले, यहाँ पर नेगेटिव आएगा पहले। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने देखो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि पॉजिटिव पे चार्ज हो रहा है क्योंकि पी यहाँ पर लगा हुआ है, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पॉजिटिव लगाया पहले। तो आपने ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस हाफ में आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। उस हाफ की वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नेगेटिव होगा वहां पर। अब वो उसी वोल्टेज को होल्ड रखेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो कि जब आप यहाँ पर नेगेटिव आप लगा रहे हो, मींस यहाँ पर V है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जब ये लगाया तो आपका यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो इट मींस अब मेरा जो कैपेसिटर है वो किस वैल्यू में चार्ज हो गया, दैट इज इक्वल टू माय पीक वोल्टेज जो हमने 5 ली थी, 5 माइनस 0.7 प्लस 1 कितना आ गया? 5.3। क्लियर हुआ ये पॉइंट पर, नहीं हुआ? Yes. Yes, sir. अब आ जाओ यहाँ पर, तो आपका जो VC है वो 5.3 आ गया। Now can you give me at this point of time what will be the output voltage when my diode is forward biased? बोलो बोलो। 0.3. 0.3. All agree with this? यस सर, इसी तरह Yes, sir. जाएगा ना। Perfectly fine। ये हमने कल भी किया था शंट क्लिपर में कि जब ये फॉरवर्ड बायस है तो इन दोनों के पास वोल्टेज कितनी आ रही है? -0.7 प्लस 1, that is coming out to be 0.3. So it means for the negative half cycle my output voltage is 0.3 volts and my capacitor voltage is 5.3 volts. Now let's come to the positive half cycle. For positive half cycle क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ये डायोड तो मेरा रिवर्स बायस हो रहा है ना, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूँ। ये तो ओपन हो गया फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब करंट ऐसे जाएगा, अब लूप लगा दो यहाँ पर। अब यहाँ VC कितना है मेरे पास? 5. लगाओ लूप, मुझे बताओ कितना आएगा आउटपुट वोल्टेज, कितनी आएगी? यहाँ V0 है मेरा, पॉजिटिव नेगेटिव दिस साइड। 0. यहाँ पर आपने पॉजिटिव +5 लगाया तो प्लस ऊपर है, नीचे माइनस है ना? लूप लगाओ, माइनस से पॉजिटिव क्या होता है? प्लस, फिर माइनस से प्लस क्या होता है? प्लस, Plus 5.3 प्लस से माइनस क्या होता है? माइनस। minus V0 तो V0 कितना आ गया? plus 10.3. नाउ लेट्स ट्राई टू मेक द प्लॉट कि जब मेरा पॉजिटिव हाफ है तो 10.3 है, नेगेटिव हाफ है तो कितना है? 0.3. It means I will be getting output like this. Here it is 10.3, here it is 0.3. Now what is the output voltage swing here? 10. 10. और input swing कितना था? 10. Yes, sir. So this is which type of clamper? Sir, positive clamp clamper. Positive clamper. Clear है ये? जी sir. अब ये क्लियर तो एक बार फिर quickly, से समझा दो। हाँ बोलो समझ बोलो गया। बोलो।
कौन सा रहा, पॉजिटिव आपको नेगेटिव आ गया, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव तो आ पॉजिटिव। रहा था। पॉजिटिव में क्या किया हमने कहा डायोड आपको क्या होगा, रिवर्स पास हो गया, सो इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट, है ना। तो अब जब +5 है तो हमने यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ नेगेटिव लगाया, तो एक केवीएल लूप लगा दो। केवीएल लूप क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है, प्लस होता है, सो 5 वोल्ट्स। फिर नेगेटिव से, क्योंकि कैपेसिटर विल होल्ड द वैल्यू ना, इट इज नॉट गोइंग टू डिस्चार्ज, ये ध्यान रखना है बस, इसके अंदर मेन पॉइंट ये है। तो कैपेसिटर ने 5.3 रखी है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो इट विल प्लस 5.3। पॉजिटिव नेगेटिव V0 है, तो माइनस V0 Minus इज इक्वल टू V0। 0। तो V0 क्या आ गया, 10.3 आ गया, ओके सर, ठीक है। हाँ जी सर। अब अगर ये क्लियर होगा तो हम एक लास्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं फटाफट, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, देखो ध्यान से, कि आपको इनपुट दिया जिसकी +10 है और -20 है। डायोड आइडियल आपका, बैटरी लगेगी 5 वोल्ट्स की, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि इसकी आउटपुट कैसी आएगी, क्विकली ओरली बता दो फटाफट क्या आएगी। कब कनेक्ट करेगा, पहले देखो आइडेंटिफाई करो कौन सा साइकिल में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में, बिल्कुल ठीक। अब ये नेगेटिव में कनेक्ट करेगा तो व्हाट इज द कैपेसिटर वोल्टेज, नेगेटिव में है तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दो, यहाँ पॉजिटिव लगा दो। कितनी वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 25 हो जाए। कितनी हो जाएगी, 25 आ जाएगा। यस सर। अब ये 25 Yes आ sir, गया, 25. हाँ, तो इस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी, मैं दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड, 5 5 वोल्ट। 5 आएगी सर। अब पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ में डायोड रिवर्स पास हो गया एंड Yes, sir. कैपेसिटर इज होल्डिंग द वैल्यू 25 वोल्ट्स। यस सर। तो अब जब हमने दूसरा लगाया तो पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर, और वोल्टेज कितनी 10 वोल्ट्स, और यहाँ वोल्टेज कितनी है हमारे पास 25 वोल्ट्स। सो व्हाट विल द आउटपुट वोल्टेज, 35। 35 वोल्ट। सो इफ आई ट्राई टू मेक द प्लॉट, तो प्लॉट कैसे मिलेगा, पॉजिटिव हाफ में जाएगा 35, नेगेटिव हाफ में जाएगा 5। एंड व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज स्विंग, 30. एंड व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज स्विंग, Sir, 30. मैचेस। 30 है ना, सेम होता है। बिल्कुल, ये आपने एक थंब रूल रखना है कि जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चेक इट एट द एंड कि क्या मेरा आउटपुट वोल्टेज में इनपुट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं केवीएल में आपने गलती करी, तो उसको रीचेक करो, ठीक है। So this is Yes. all regarding Yes, your sir. clampers topic. In the next class we are going to start with your digital portion, ठीक है, वो आपको बहुत सिंपल रहेगा। 2 minutes. हाँ, take your time. Thank you, sir. ओके बच्चे, ओके, टेक केयर। सर ये 35 Yes, कैसे sir. आया, हाँ जी, ये 35 कैसे आया था, 35 कैसे आया था, थैंक यू सर। ओके, 35 कौन सी स्लाइड में था हमारा, हाँ, ये देखो 35 कैसे आया बच्चे, हमारा कैपेसिटर जो सा है वो 25 वोल्ट चार्ज हो गया पहले यस नेगेटिव सर, हाफ में, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, लूप लगाओ, नेगेटिव से पॉजिटिव 10 वोल्ट्स प्लस 10, नेगेटिव से पॉजिटिव 25 वोल्ट्स प्लस 25, पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस V0 इज इक्वल टू 0, तो V0 कितना आ गया, ओके सर, ठीक है। हाँ एनी जी, अदर डाउट, नो सर, चलो, ओके स्टूडेंट्स।